हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आपका अपना अमृत राजलवाल हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल आई एम राजलवाल्स में। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो सीरीज में हमने आपके साथ में बात की, प्रैक्टिकल करके हमने आपको दिखाया एनालिसिस ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल सैंपल्स। अब हम बात करेंगे सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा रिलीज एंजाइम्स के बारे में। ये जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और इनके द्वारा जो रिलीज एंजाइम्स है, इनका न्यूट्रिएंट के मिनरलाइजेशन में एक बहुत बड़ा रोल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सॉइल में अवेलेबिलिटी, सॉइल एंजाइम्स की अवेलेबिलिटी ये दर्शाती है कि वो सॉइल कितनी वाइबल है, यानी कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी कितनी है। तो दोस्तों, सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सीरीज में आज हम सबसे पहले बात करेंगे एनालिसिस ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्टिविटी इन सॉइल। तो चलते हैं दोस्तों लैब की तरफ। लैब में जाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं दोस्तों लैब। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्टिविटी में सबसे पहले हम बात करेंगे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्टिविटी के प्रिंसिपल के बारे में। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बेसिकली एक रेस्पिरेटरी एंजाइम है और डिहाइड्रोजिनेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इट इज रिलीज्ड बाय द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड measuring the dehydrogenase activity gives the index of biological activity of a soil. यानी कि when you are measuring the dehydrogenase enzyme in a soil, it will tell you that how a soil is biologically active. Then during the respiration of soil microbes, biological oxidation of reduced compound is catalyzed by the dehydrogenase. यानी कि जब soil में microbes का respiration होता है तो वो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करते हैं कुछ रिड्यूस्ड कंपाउंड जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, एंड दिस कैन बी बाय RH2 plus A is equal to R will be here and AH2, and this AH2 is the 2 protons and 2 electrons. Now here where RH2 represent a reduced compound, that is the hydrogen donor, and A is the electron acceptor, which in aerobic organisms is oxygen. In case of aerobic oxygen it is oxygen, and under the anaerobic conditions compounds like tetrazolium chloride, triphenyl tetrazolium chloride acts as an electron acceptor, and the reaction will be TTC will react with these two hydrogen ions and two electron ions, and it will convert into the triphenyl formagen. This will be the pink color. When you are reacting it, the TTC will be converted into the triphenyl formagen, and the pink color will be developed, and this pink color is measured in the spectrophotometer. DHA can be measured as a rate of formation of TPF from the TTC. Higher biological activity, faster will be the TPF formation. Means the soil जितनी ज्यादा biological activities होगी, हमारा जो ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड है उससे TPF फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो दोस्तों ये था इसका प्रिंसिपल। For measurement of dehydrogenase activity in soil, we required 4 reagents. The first reagent is 3% solution of triphenyl tetrazolium chloride. For this, transfer 3 grams of TTC in 100 ml volumetric flask and make up the volume 100 ml with distilled water. The second reagent required is 1% solution of glucose. For this, transfer 1 gram of glucose in 100 ml volumetric flask and make up the volume 100 ml with distilled water. The third reagent required is methanol. For this purpose, you can use any AR grade of methanol. The fourth reagent required is 100 ppm standard of triphenyl formagen. For this, transfer 100 mg of TPF in 100 ml volumetric flask and make up the volume with the help of distilled water. For step-by-step procedure of measurement of dehydrogenase activity in soil, measure the 1 gram of air-dried soil and transfer this soil in a 50 ml screw-capped test tube.
Then add 0.2 ml of 3% TTC solution in these soils. Also keep one blank sample with these soil samples. After adding the TTC, add 1% of glucose solution in all the soil samples. After adding the glucose solution, gently tap all the soil samples to remove the air, and then keep the test tube airtight with the help of screw cap. After that, keep the soil samples for incubation at 28 degrees Celsius temperature for 24 hours. Exactly keep the temperature at 28 degrees Celsius. After 24 hours, remove the soil samples from the incubator and remove their caps, and again gently tap all the soil samples. After gently tapping, add 10 ml of AR grade methanol in all the soil samples one by one. Also add the methanol in blank samples also. Cap the test tubes and shake them vigorously. After shaking, again allow the soil samples to stand for 6 hours. After 6 hours, this type of pink color will be developed in the samples. Filter the soil samples with the help of Wattman number 2 filter paper, and then measure the intensity of pink color at 485 nanometer with the help of spectrophotometer. You can see in the picture that first of all we have fixed the wavelength of the spectrophotometer at 485 nanometer and then calibrate the spectrophotometer with the blank solution. After the calibration, add your sample in the tube of the spectrophotometer and then measure the intensity of your soil sample, pink color, at 485 nanometer. You see in the picture that now we are measuring our soil samples and you can see the absorbance. अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन के बारे में कि किस प्रकार से आपने जो पिंक कलर की इंटेंसिटी मेजर की उसको आप किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि उसके अंदर कितना जो है एंजाइम है, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कितना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारा टीपीएफ सॉल्यूशन स्टैंडर्ड बनाया था हमने 100 ppm का, उससे आप 10 माइक्रोग्राम से लेकर के और 90 माइक्रोग्राम के जो है अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स के अंदर लेंगे। 10 लेंगे, 20 लेंगे, 30 लेंगे, 40 लेंगे, 60, 80, 90, इस प्रकार से आप जो है इतना जो है माइक्रोग्राम उसके अंदर सॉल्यूशन आप ले लेंगे। उसके बाद में जिस प्रकार से आपने सॉइल के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया उसमें आप ग्लूकोज डालेंगे, उसके अंदर आप जो है मेथनॉल डालेंगे, जो भी हमने प्रोसीजर फॉलो किया, टीटीसी डालेंगे, ग्लूकोज डालेंगे, फिर उसको इंक्यूबेट करेंगे। उसके बाद में वो सब करने के बाद में आप फिर उसको क्या करेंगे, उसका एब्जॉर्बेंस जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर उसका एब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे। तो यहाँ तो आ जाएगी आपकी जो भी आपने क्वांटिटी ली थी और यहाँ आ जाएगा एब्जॉर्बेंस। इससे फिर आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस ग्राफ पर जो भी आपकी रिएक्शन आएगी y बराबर mx प्लस c, जो भी आपकी जो इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन से आप कंसंट्रेशन, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन निकाल देंगे। कंसंट्रेशन इन माइक्रोग्राम टीपीएफ पर ग्राम सॉइल
इन 24 आवर्स। तो इस प्रकार से आप जो फाइनली जो आप मतलब हमारा जो डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी को हम जो मेजर करते हैं वो माइक्रोग्राम टीपीएफ इन पर ग्राम सॉइल इन 24 आवर्स, क्योंकि हम 24 आवर्स के लिए जो है इंक्यूबेट कर रहे हैं। तो ये थी दोस्तों इसकी कैलकुलेशन कि किस प्रकार से आप जो है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की कैलकुलेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि सॉइल में डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्टिविटी आप किस प्रकार से मेजर करेंगे। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में जो उपयोगी होगा एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए, एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स के लिए, एग्रीकल्चरल पॉलिसी मेकर्स के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।